اچھا تو یہ بات ہے، محافظ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ کر عمر کا انتظار کرو، دوسرے محافظ نے مطمئن ہو کر کہا۔ انتظار بھی کرو اور ہمیں بین بھی سناؤ، پہلے محافظ نے ہنس کر کہا۔ وقت اچھا گزرے گا، بکواس بند کرو، تم نے کیا مجھے عام آدمی سمجھا ہوا ہے؟ تمہاری فرمائشیں پوری کروں؟ عمر نے غصے سے کہا۔ میں افراسیاب کا خاص جاسوس ہوں، اسی لیے تو اس نے عمر کی گرفتاری کے لیے مجھے بھیجا ہے، ورنہ دربار میں اور بھی بڑے بڑے جادوگر تھے۔ بین تو تم پہلے ہی بجا رہے تھے، دوسرے محافظ نے منہ بنا کر کہا۔ ہم نے سنانے کو کہہ دیا تو کون سا زلزلہ آ گیا؟ چلو چلو جاؤ اپنا کام کرو، عمر ہرایا۔ اگر تمہارا سالار یہاں قریب ہے تو اسے میرے پاس بھیج دو، ضروری بات کرنی ہے اس کے ساتھ۔ عمر نے غصے میں دیکھ کر محافظ ڈر گئے، کہیں عمر سالار سے ان کی شکایت نہ کر۔ وہ عمر کے پاس سے ہٹ کر واپس اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے اور پہرا دینے لگے۔ سرحدی محافظوں کا سالار اپنے خیمے میں بیٹھ کر شربت پی رہا تھا۔ وہ شربت نوشی کا عادی ہو چکا تھا، ہر آدھے گھنٹے بعد ایک گلاس ضرور پیتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام بھی شربت جادوگر مشہور ہو گیا۔ اچانک ایک محافظ اس کے خیمے میں داخل ہوا اور شربت جادوگر اسے گھورنے لگا۔ کیسے آئے ہو؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ حضور، ایک ضروری کام سے آیا ہوں، محافظ نے گھبرا کر۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں شربت پی رہا ہوں؟ شربت جادوگر ہرایا۔ ہم بس تو شربت پینے کے اوقات میں ہی تمہیں کام یاد آ جاتے ہیں۔ جناب مجھے معلوم ہے، لیکن فالسا، محافظ کہنے لگا۔ کیا کہا فالسا؟ شربت جادوگر اس کی بات کو کاٹتے ہوئے دہاڑا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے فالسے کا شربت بالکل پسند نہیں ہے، میں صرف انگوروں کا شربت پیتا ہوں اور جیتا ہوں۔ مگر جناب فالسا، محافظ سہم کر بولا۔ مگر شربت جادوگر اسے فوراً ٹوک دیا۔ بکواس مت کرو ذلیل آدمی، آئندہ مجھے فالسے شربت پینے کا مشورہ مت دینا ورنہ قتل کر دوں گا۔ حضور میری بات تو سن لیں، محافظ نے تیزی سے کہا۔ قسم شرباسی شہنشاہ افراسیاب نے ایک جادوگر کو بھیجا ہے۔ کون ہے وہ؟ شربت جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ اس کا نام جناب فالسا ہے، محافظ نے بتایا۔ ارے یار، تو یوں بکونا کہ تم کسی جادوگر کا نام لے رہے تھے، شربت جادوگر نے ایک دم نرم پڑتے ہوئے کہا۔ حضور میں تو یہی بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ فالسے پر ہی اڑ گئے، محافظ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا اچھا، کیا کہتا ہے فالسا جادوگر؟ افراسیاب نے اسے کیوں بھیجا ہے؟ شربت جادوگر نے بے پرواہی سے پوچھا۔ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، محافظ نے جواب دیا۔ مجھے بلا رہا ہے؟ کیا میں اس کا ماتحت ہوں؟ شربت جادوگر نے کہا۔ حضور وہ کہتا ہے کہ میں افراسیاب کا خاص آدمی اور جاسوس ہوں، محافظ بولا۔ وہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ جاسوس ہے تو یہاں کے جاسوسی کرنے آیا ہے؟ شربت جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے کہا ہے کہ وہ عمر کو پکڑنے آیا ہے، جس کے یہاں آنے کا امکان ہے، محافظ نے جواب دیا۔ اچھا، شربت جادوگر فکر مند ہو کر بولا۔ تم چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ محافظ نے سلام کیا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ شربت جادوگر جلدی جلدی شربت پینے لگا۔ شربت جادوگر چند لمحوں بعد خیمے سے نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک تخت دکھائی دیا۔ وہ تخت کی طرف بڑھنے لگا۔ تخت پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ شربت جادوگر کو اطلاع دینے والا محافظ بھی وہاں موجود تھا۔ جلد ہی شربت جادوگر ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا یہی فالسا ہے؟ اس نے تخت پر بیٹھے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محافظ سے پوچھا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فالسا جادوگر نے غصے سے کہا۔ جناب یہ ہمارے سالار شربت جادوگر ہے، محافظ نے فالسا جادوگر کو بتایا۔ اچھا تو یہ ہے شربت جادوگر، فالسا جادوگر نے سر ہلا کر کہا۔ تبھی یہ اتنا میٹھا میٹھا لگ رہا ہے مجھے۔ جی ہاں، یہ شربت صرف انگوروں کا پیتے ہیں، فالسے کا نہیں، محافظ نے ہنس کر کہا۔ مگر تم کیوں دانت نکال رہے ہو؟ فالسا جادوگر نے اسے ڈانٹ دیا۔ جاؤ اپنا کام کرو، افسروں کی باتوں میں دخل مت کیا کرو۔ محافظ پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ فالسا جادوگر نے شربت جادوگر سے کہا۔ شربت جادوگر، اس محافظ نے بتایا تھا کہ تم خیمے میں شربت پی رہے تھے، میں کلثوم ہوں، شربات سے سفر کر کے آیا ہوں، تم مجھے شربت نہیں پلاؤ گے؟ کیوں نہیں، جتنا دل چاہے پی لو، اگر شربت میں خیمے میں ہے۔ شربت جادوگر نے مسکرایا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تمہارے خیمے میں چلتے ہیں نا یار، وہاں شربت بھی پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے، فالسا جادوگر بولا۔ یہاں کوئی سن لے گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ عمر تو ابھی نہیں آیا نا اس طرف؟ آیا تو نہیں، لیکن آنے کا خطرہ ہے، شربت جادوگر نے کہا۔ خطرہ کس لیے ہے؟ فالسا جادوگر نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیوں خطرہ ہے عمر کو آنے کا؟ دراصل کچرا جادوگر نے 7ویں شادی کے لیے شام کی شہزادی نیلوفر کو اغوا کرایا ہے، اور اسے خطرہ ہے کہ شہزادی کو واپس لینے کے لیے عمر نہ آ جائے۔ اس لیے کچرا جادوگر نے حکم دیا ہے کہ سرحد پر پہرا دیا جائے، اور جو بھی اجنبی طلسمی نگری میں داخل ہو یا داخل ہونے کی کوشش کرے اسے گرفتار کر لیا جائے، پھر ان میں سے جو بھی عمر ثابت ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ شربت جادوگر تفصیل بتانے لگا۔
लेकिन अभी तक उम्रू या कोई और इसकी तरफ नहीं आया। आएगा तो इसी नगरी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा, तो तुम अंदर जा सकते हो ना? फालसा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जा सकता हूँ, मैं तो अफसर हूँ, सरहदी मुहाफिजों का सालार। शरबा जादूगर ने फख्र से बोला, जब चाहूँ नगरी में आ जा सकता हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ जो मुहाफिज के सामने नहीं बता सकता। फालसा जादूगर ने राज अंदाज में कहा, मगर वादा करो इस बात का तुम्हारे किसी मुहाफिज को पता ना चले और ना ही तुम किसी से जिक्र करोगे, क्योंकि मुंह से निकली बात पराई हो जाती है और इसे फैलने में कोई नहीं रोक सकता। बात फैल गई तो मेरी आमद का मकसद बहुत हो जाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ किसी से जिक्र नहीं करूँगा। शरब जादूगर ने सर हिलाकर, बोलो क्या बात है? फालसा जादूगर कहने लगा, बात यह है कि मैं अफरसियाब के हुक्म पर खुफिया तौर पर कचरा जादूगर के महल की देखभाल और हिफाजत करने आया हूँ, क्योंकि अफरसियाब ने जादू से मालूम कर लिया है कि उमरू अयार आज आधी रात के वक्त बेस बदल कर तिलिस्मी नगरी में दाखिल हो जाएगा। फालसा जादूगर की बात सुनकर शरबा जादूगर एकदम परेशान हो गया। फालसा जादूगर ने उमरू की आमद यकीनी बनाई थी। शरबा जादूगर जानता था कि शहंशाह अफरसियाब के पास तिलिस्मी किताब है, जिससे वो माजी हाल अलावा मुस्तकबिल की बातें भी मालूम कर लेता है। अगर उमरू नगरी में दाखिल होने में कामयाब हो गया, शह जादूगर गफलत के जुर्म में इसे सजा देगा। इसी वजह से वो परेशान हो गया था। फालसा जादूगर इसे परेशान देखकर पूछा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो यार? इसलिए अगर उम्र नगरी में दाखिल हो गया तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा और कचरा जादूगर मुझे सजा देगा। शरब जादूगर ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, पहले तो ये सुन लो कि उम्र को क्या तरीका अख्तियार करेगी। फालसा जादूगर ने मुस्करा कर कहा, अफरसियाब ने जादू से ये मालूम किया है कि उम्र शक्ल बदल कर नगरी में दाखिल होगा, इसी वजह से मुहाफिज इसे पहचान ना सकेंगे। वो कचरा जादूगर के महल के पीछे से सुरंग खोद कर महल में दाखिल होने की कोशिश करेगा। मुझे उमरू को इसी जगह पर गिरफ्तार करना है और सुबह कचरा जादूगर के सामने पेश करके इसे भारी इनाम व इकराम वसूल करना है। अच्छा, तो तुम इनाम हासिल करोगे? शरबत जादूगर ने पूछा। हाँ, क्योंकि अफरसियाब ने कचरा जादूगर को पैगाम भेजा है कि जब उमरू को पकड़ के इसके हवाले करेगा, वो मुझे अपने खजाने का चौथा हिस्सा इनाम के तौर पर अदा करेगा। आगे मेरी मर्जी कि मैं इनाम अपने पास रखूँ या तुम जैसे मीठे दोस्त को दो। फालसा जादूगर ने कहा। इसकी बात सुनकर शरबत जादूगर के दिल में खुशी होने लगी। इसी उम्मीद पे कि हो सकता है कि फालसा जादूगर के इनाम में इसे बख्श दे, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि सुबह तक का इंतज़ार करो। फालसा जादूगर कहने लगा, क्या तुम्हें जल्दी है? शरबत जादूगर ने चौंक कर पूछा। हाँ, मुझे सुबह से पहले वापस अपने महल जाकर नहाना धोना और अपनी भैंस के आगे बीन बजाना है, वरना वो दूध नहीं देगी जो मैं रोज़ाना शहंशाह अफरसियाब की मलका के नाश्ते के लिए शाही महल पहुँचाने जाता हूँ। फालसा जादूगर ने बताया, अगर मैंने मलका को दूध ना पहुँचाया तो इसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और वो बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि शाही हकीम ने इसके इलाज के लिए ऐसी भैंस का दूध पिलाने का कहा है जो सिर्फ बीन की आवाज़ सुनकर दूध देती है, और ऐसी भैंस पूरे तिलिस्म होशंगा में सिर्फ मेरे पास है। ये देखो बीन। फालसा जादूगर के पास रखी बीन उठाकर शरबत जादूगर को दिखाई। शरबत जादूगर ने बीन देखी और मुस्कुरा कर बोला, हैरत की बात है कि भैंस बीन सुनकर दूध देती है। अब तुम कैसे सुबह से पहले वापस जा सकोगे? सिर्फ एक ही तरह मुमकिन है कि तुम मेरे साथ कचरा जादूगर के महल चलो, यहाँ जहाँ शहजादी नीलूफर मौजूद है। फालसा जादूगर ने कहा, मगर वो तो नए महल में है जो कचरा जादूगर ने अपनी बीवी को रखने के लिए बनवाया है। शरबत जादूगर ने बताया। अरे मैं तो इसी महल की बात कर रहा हूँ। फालसा जादूगर ने हंस कर कहा, उमरू इसे आज़ाद कराने इस महल का रुख करेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं उमरू को पकड़ कर तुम्हारे हवाले कर दूँगा और खुद वापस तिलिस्म होशंगाबाद चला जाऊँगा। तुम सुबह उमरू को कचरा जादूगर के सामने पेश करना, कहना उमरू को तुमने पकड़ लिया, तो वही से तुम्हें इनाम अता करेगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। शरबत जादूगर खुश होकर बोला। इसी तख्त पर चलते हैं। नहीं, किसी ने तख्त देख लिया तो मेरी आमद का राज खुल जाएगा। उमरू भी तख्त देख कर होशियार हो जाएगा, इसीलिए तुम अपनी सवारी बनाओ, तिलिस्मी घोड़ा बना लो, मैं इस पर तुम्हारे पीछे बैठूंगा। फालसा जादूगर ने कहा, तख्त यहीं पड़ा रहे ताकि मुहाफिज समझे कि मैं नगरी से बाहर। फालसा जादूगर की बात सुनकर शरबत जादूगर को एक मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंका। दूसरे ही लम्हे वहाँ एक तिलिस्मी घोड़ा नमदार हो गया। शरबत जादूगर फालसा जादूगर से कहा, बैठो फालसा जादूगर। नहीं यार, तुम आगे बैठो, मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा ताकि मुहाफिज मुझे पहचान कर समझ ना जाए कि मैं नगरी के अंदर जा रहा हूँ। फालसा जादूगर की बात दुरुस्त थी। शरबत जादूगर घोड़े पर सवार हुआ
और फालसा जादूगर इसके पीछे बैठ गया। नगरी के अंदर नए महल शाही महल के अकब में चलो। शरबत जादूगर ने तिलिस्मी घोड़े को हुक्म दिया। तिलिस्मी घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और नगरी की तरफ उड़ने लगा। जल्द ही तिलिस्मी घोड़ा नगरी के अंदर बने हुए नए महल के अकब में जा पहुंचा। महल के अकब में दरख्तों का एक झुंड था। फालसा जादूगर कहने पर शरबत जादूगर ने तिलिस्मी घोड़े को दरख्त के झुंड में उतारा और दोनों घोड़े की पुश्त से उतर आए। फालसा जादूगर ने कहा, शरबत जादूगर, घोड़ा दरख्त से बांध दो, मैं उमरू को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसी घोड़े पर वापस तिलिस्म को शरबा जाकर अपनी भैंस के आगे बीन बजाऊंगा, इसे हुक्म का पाबंद कर दूंगा। इसकी बात सुनकर शरबत जादूगर ने घोड़े को हुक्म दिया, तिलिस्मी घोड़े, अब तुम्हारा मालिक ये है, इसका हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। वो खामोश हुआ तो फालसा जादूगर ने इसे कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम गैबी और पोशीदा चीज़ को फ़ौरन देख सकते हो? नहीं, पोशीदा चीज़ों को देखने का मंत्र मुझे नहीं आता। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? शरबत जादूगर ने चौंकते हुए कहा, इसीलिए मुझे भी ये मंत्र नहीं आता। क्या इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी? शरबत जादूगर ने पूछा। बिल्कुल, इसके बगैर हम उम्र को नहीं देख सकते। और उसका जादूगर ने सर हिलाकर कहा। शरबत जादूगर गौर से इधर उधर देखता हुआ बोला, क्या उम्र पोशीदा ताकत में यहाँ आएगा? हाँ, वो सुलेमानी टोपी पहनकर यहाँ आएगा, किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन इसे देखने के लिए अफरस्याब ने मुझे एक तिलिस्मी सुरमा दिया हो कि उम्र मेरी निगाहों से पोशीदा न रह सके। इसने तो रास्ते में ही सुरमा लगा लिया था, कहीं उम्र मेरे पास से गुजरे और मैं बेखबर ना रह जाऊँ। अब तुम भी सुरमा आंखों में लगाओ, उम्र के आने का वक्त हो चुका है, वो आने ही वाला है। ये कहकर फालसा जादूगर ने जेब से एक सुरमादानी निकाली, एक एक सिलाई शरबत जादूगर की आंखों में लगा, फिर सुरमादानी वापस जेब में रखता हुआ बोला, इससे कोई तकलीफ नहीं होती, बस एक दो लम्हे के लिए सर चकराता है, फिर सब पोशीदा चीज़ें नजर आने लगती हैं। एक दो लम्हे बाद ही शरबत जादूगर का सर चकराने लगा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा, क्योंकि सुरमा नशा आवर था और फालसा जादूगर के रूप में दुनिया का आयाब तरीन शख्स उम्रू था। इसने शरबत जादूगर के हाथ पांव बांधे और इसकी ज़बान में सुई पेवस कर दी, फिर इसे उठाकर अपनी सुलेमानी जंजीर में कैद किया और तिलिस्मी घोड़े पर सवार हो गया। उमरू ने तिलिस्मी घोड़े पर सवार होकर इसे हुक्म दिया, इस महल की छत पर चलो। तिलिस्मी घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और महल के अकबी जानिब से महल की छत पर उतर गया। उमरू ने घोड़े से उतरकर इसे वहीं ठहरने का हुक्म दिया, फिर दबे पांव जीनों की तरफ बढ़ गया। वो कोई आहट पैदा किए बगैर जीने उतरकर महल के बरामदे में पहुंचा। बरामदे के एक कमरे के बाहर दो सिपाही खड़े थे जो मुहाफिज मालूम होते थे, आपस में बात कर रहे थे। उमरू दीवार की आड़ में रुक गया और इसकी बातें सुनने लगा। कचरा जादूगर को इतला देनी चाहिए कि शहजादी को होश आ गया है, वो रो रही है, एक सिपाही ने दूसरे से कहा। दरबार इसे इतला देने के लिए गया हुआ है, कचरा जादूगर आने ही वाला होगा, दूसरे सिपाही ने कहा। ये सुनकर उमरू ने सोचा, कम वक्त है। इसने जंजीर से अपनी सुलेमानी चादर निकाली और ओढ़ ली। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। फिर वो दबे पांव चलता हुआ इस कमरे के दरवाजे के पास जा पहुंचा जहां दोनों सिपाही खड़े थे। इसने इन्हीं उम्र की मौजूदगी का बिल्कुल एहसास न हुआ। उम्र उन्हीं दरवाजे के आगे से हटाने की तरतीब सोचने लगी। इसी लम्हे हुसैन की तरफ से एक जादूगर शाहाना लिबास पहने बरामदे में दाखिल हुआ। इसे देखकर दोनों सिपाही फौरन इसे अदब से सलाम किया। कचरा जादूगर आने पर मुहाफिज सिपाही दरवाजे से हट गए। करीब आकर कचरा जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और दरवाजे पर खोल दिया, भले ही दरवाज़ा खुलता चला गया। कचरा जादूगर कमरे में दाखिल हुआ, फिर उमरू भी जल्दी से अंदर आ गया और इसी लम्हे दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे के फर्श पर एक खूबसूरत शहजादी नीलोफर बैठी हो रही। इसे देखकर उमरू को बेहद दुख हुआ। बस करो शहजादी, रोना धोना बंद करो। कचरा जादूगर ने हंसकर शहजादी से कहा, तुम्हारी मुझसे शादी होगी, तुम मेरी सातवीं मलका बनोगी। मैं लानत बेचती हूँ तुम पर काफिर के बच्चे। शहजादी ने रोते हुए गुस्से से कहा, मैं शादीशुदा हूँ और सिर्फ शहजादा अहमद की बीवी रहूँगी। तुम जैसे जालिम और खबीस से हर किस शादी नहीं करूँगी। इसने मुझे जानवर की तरह जंजीर से बांधा रखा है। अच्छा जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा, शहजादी की तरफ होगा और बोला, लो तिलिस्मी जंजीर खुल गई, अब तुम मुझसे शादी करोगी ना? तुमसे शादी मैं करूँगा कचरे। मुंह में एकदम हो रहा है। कचरा जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। इसने हैरान होते हुए चारों तरफ देखा, मगर इसे उमरू नजर न आया, क्योंकि उमरू ने सुलेमानी चादर ओढ़ रखी थी, जिसके सबब वो शहजादी और कचरा जादूगर की निगाहों से पोशीदा था। शहजादी भी हैरान नजर आ रही थी। उमरू इनसे चंद फुट दूर खड़ा था। कौन हो तुम? सामने आओ, कचरा जादूगर ने सख्त लहजे में कहा। तुम कचरे हो
और मैं तुम्हारा बाप कूड़ा क्रिकेट जादूगर हूँ। उमरू ने हंस कर कहा, मुझे अफरस्याब ने तुम्हारी सरकूबी के लिए भेजा है, क्योंकि तुमने इसकी मर्जी और इजाज़त के बगैर शहजादी को अगवा कराया और इसे पूछे बगैर शहजादी से शादी करना चाहते हो। अच्छा जादूगर ने गुस्से से कहा, अगर अफरस्याब को एतराज़ था तो पैगाम भेजकर मुझे मना कर देता। ये कौन सा तरीका है मुझे रोकने का? उमरू ने ज़मीन से सफ़ूफ़ बेहोशी की पुड़ियाँ निकाली और एक चुटकी में सफ़ूफ़ लेकर इसकी तरफ बढ़ा और बोला, अरे बेवकूफ़ कचरे, अफरस्याब शहंशाह है, इसकी मर्ज़ी चाहे जो भी हो तरीका इख्तियार करे, मगर तुम इससे पहले इजाज़त ले सकते थे। इजाज़त कैसे लेता? मुझे क्या पता था वो ऐन मौके पर एतराज़ करेगा। कचरा जादूगर ने मुंह बना कर कहा। फिर दबे पाँव कचरा जादूगर के पीछे पहुंचा और सफ़ूफ़ की चुटकी इसके नाक पर मल दी। सफ़ूफ़ सूंघते ही कचरा जादूगर राख कर बेहोश हो गया। शहजादी नीलूफ़र हैरत से कचरा जादूगर की तरफ देख रही। ऊन ने सर से सुलेमानी चादर उतारी और ज़ाहिर हो गया। ओह, तुम कौन हो? इसे देखकर शहजादी ने हैरत से पूछा। मैंने अपनी शक्ल जादूगरों जैसी बना रखी है शहजादी, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में मेरा नाम ख्वाजा उमरू अयार है और शहजादा अहमर की दरख्वास्त पर तुम्हें आज़ाद कराने आया हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम खामोशी से देखती रहो। उमरू की बात सुनकर शहजादी खुश होने लगी। उमरू ने कचरा जादूगर के हाथ पाँव बांधे, फिर रंग और रोगन अयारी से वो इसका हमशक्ल बनाने लगा। शहजादी खामोशी से देखती रही। उमरू ने कचरा जादूगर को उठाकर ज़मीन में डाला और शहजादी का हाथ पकड़कर दरवाजे पर आया। इसे दरवाज़ा खोला तो दोनों सिपाही बाहर मौजूद थे। मैं शहजादी का दिल बहलाने छत पर जा रहा हूँ, तुम कमरे में बैठकर मेरा इंतज़ार करो। उमरू ने कचरा जादूगर की आवाज़ में सिपाही को हुक्म दिया। दोनों सिपाही कमरे में चले गए। उमरू शहजादी के साथ जीने चढ़कर छत पर आया, जहाँ इसका तिलिस्मी घोड़ा मौजूद था। इसने शहजादी को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और घोड़े को अपने मुल्क जाने का हुक्म दिया। घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ, एक तरफ उड़ने लगा। सुबह होने वाली थी जब तिलिस्मी घोड़ा उमरू के हुक्म पर इसे घर पर उतरा। उमरू ने शहजादा अहमर को आवाज़ दी, वो कमरे से निकल आए। शहजादी नीलूफ़र को देखकर शहजादा अहमर बेहद खुश हुआ, फिर उमरू की तरफ हैरत से देखा। मैं उमरू हूँ शहजादे, उमरू ने हंस कर कहा। मैं कचरा जादूगर का हमशक्ल बना हो जो मेरी ज़मीन में कैद है। मैं इसमें इसका कीमा करके कुत्तों को डाल दूँगा, यही इसकी सज़ा है। तुम शहजादी को लेकर इस घोड़े पर बैठ और मुल्क चले जाओ। उमरू की बीवी ने शहजादी को रिहाई की मुबारकबाद देते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम कचरा जादूगर के चुंगल से आज़ाद हो गई। शहजादा अहमर ने तुमसे बेहद मोहब्बत है और तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहता है। तुम भी इसी तरह मुझसे मोहब्बत करो ना, उमरू ने बीवी से कहा। वो शर्मा गई। शहजादी नीलूफ़र और शहजादा अहमर बेख्तियार हंस पड़े। फिर शहजादा उमरू का शुक्रिया अदा किया। उमरू ने शहजादे से कहा, शहजादी ये तिलिस्मी घोड़ा मैंने शरबा जादूगर से लिया था। इसने घोड़े को हुक्म का पाबंद कर दिया था, अब इसे तुम्हारा ताबे करता हूँ। तुम इसे जहाँ चाहो, जहाँ उतारना चाहो ये हुक्म पर अमल करेगा। फिर उमरू ने घोड़े से कहा, तिलिस्मी घोड़े अब शहजादा तुम्हारा मालिक है, मैंने तुम्हें इसके हवाले कर दिया है, इसका हुक्म मानो। उमरू मैं तिलिस्मी घोड़ा हूँ, काट का अबू नहीं, जिसका दिल चाहे मुझे दूसरे के हवाले कर दे। घोड़े ने इंसानी आवाज़ में गुस्से से कहा। दूसरे ही लम्हे वो गायब हो गया। तब उमरू ने शहजादे से कहा, अब तुम्हें आम घोड़े पर जाना पड़ेगा, ये मेरा घोड़ा ले जाओ। नहीं ख्वाजा, मेरे मुहाफ़िज़ सिपाही सहराए में ठहरे हुए हैं, मेरा घोड़ा भी इनके पास है, मैं इस पर चला जाऊँगा। फिर शहजादा अहमर अपनी बीवी शहजादी नीलूफ़र के साथ रुखसत हो गया।